We have learned in the previous video that two systems together, the nervous system and the endocrine system, they together work for controlling and coordinating the various functions of the body. Under the endocrine system, we had introduced the role of hormones in maintaining the proper functioning of the body. Now, hormones are released by endocrine glands, and I told you the features of hormones, that they have to be always released at the correct time and in the correct quantity. And the time as well as quantity of hormones is decided by a system present in human body called the FBM. FBM stands for the feedback mechanism. It decides that when and how much hormone will be released. Now, sometimes due to diseases or due to genetic defects, the hormones are not released in the correct quantity, which leads to hormonal diseases. Diseases which are caused due to hormonal imbalance in the body, they are called hormonal diseases. About these diseases, we have to learn that what is the cause behind that disease and how can we handle them. The major gland of the body, the first gland which we also call it as the master gland, pituitary gland. The gland is located below the hypothalamus in the midbrain, and this gland is responsible for releasing total 9 hormones, out of which 8 are trophic hormones which control the functioning of the other glands of the body. Now, out of the 9, one of the hormones is the growth hormone. As the word itself signifies, growth hormone, the hormone responsible for growth of the body. Now, in case the pituitary gland is able to release an adequate quantity of growth hormone, the person grows normally and attains a proper height which is considered to be normal in humans. Because the height and the normal growth of a person, that tells us about the general fitness of an organism. In case there is a disbalance in the quantity of GH, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करे, then it leads to 2 hormonal diseases, dwarfism and gigantism. Hyposecretion, hypo word always means less. जितना ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ ड्यू टू द स्लगिशनेस, ड्यू टू द लेजीनेस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. Pituitary gland is not swift, it is not releasing the correct quantity of hormone, it has become sluggish. Then the growth hormone released is less than the required hormone, which leads to a condition called dwarfism. और dwarfism एक ऐसी disease है जिसमें a person has height lesser than the normal height. All the growth is stunted growth. प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, एंड सच काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड ड्वार्फ्स. नॉर्मल लैंग्वेज में हम उनको बौने बोलते हैं, राइट. एंड दिस डिजीज कॉज्ड ड्यू टू हार्मोन्स आर नॉट क्योरेबल. देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीजेस. इन केस ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड मोर दैन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन. हाइपर सिक्रीशन तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है. ओवर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड लीड्स टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड दैट ग्रोथ हार्मोन विच इज बिग इन क्वांटिटी, मोर इन क्वांटिटी in the body, leads to a disease called gigantism, in which the person has height above normal. 7 फीट से भी ऊपर हाइट हो जाती है. I was referring to Khali. All of you are very familiar with this name. That person, Khali, is not only very tall, but you must have observed that his voice, his way of walking is not normal, because he is not simply tall and powerful. He is actually suffering with a disease called gigantism. The only thing is, he has converted his weakness into his strength and earned a big name.
Clear? So a person whose height is above normal, then the growth is also very abnormal, the body features are also abnormal. These kind of people, they are suffering from a hormonal disorder called gigantism. The next important gland is thyroid gland, which is situated in your neck region, just in front of the trachea. The thyroid gland is an important gland which releases a very important hormone called thyroxine. Thyroxine is responsible for metabolism of carbohydrates, fats and proteins in our body. क्या मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स? अगर हमारी ब्लड में थायरॉक्सिन की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होगी तो हम अगर अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स खा भी रहे हैं तो उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ थायरॉक्सिन. सो थायराइड ग्लैंड situated in your neck should release a proper quantity of thyroxine. In case it fails to release a proper quantity of thyroxine, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिज्म, सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जिनकी वजह से ग्रोथ होती है, वो सारे रिएक्शंस पर इफेक्ट आ जाते हैं. सो थायराइड ग्लैंड ट्राइज टू मैनेज टू रिलीज अ गुड क्वांटिटी ऑफ थायरॉक्सिन. वो कोशिश करता है और इस कोशिश में वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है. एंड व्हेन द थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेज इट्स साइज, दैट लीड्स टू अ स्वेलिंग इन द नेक, एंड दैट एबनॉर्मल हार्मोनल कंडीशन इज़ कॉल्ड गॉइटर. ये डिजीज़ सब ने पढ़ी होगी, सब ने सुनी होगी, गॉइटर. इसमें नेक में स्वेलिंग हो जाती है एंड दैट स्वेलिंग इज़ एक्चुअली ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड. एंड बेसिकली इस सारी प्रॉब्लम का मेजर कॉज होता है आयोडीन. व्हेन योर डाइट इज़ डेफिशिएंट इन आयोडीन, जितनी आयोडीन की क्वांटिटी डाइट में आपको लेनी चाहिए उससे कम आप ले रहे हैं, इन दैट केस द थायराइड ग्लैंड इज़ नॉट एबल टू रिलीज द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ थायरॉक्सिन. देन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, लीडिंग टू स्वेलिंग इन द नेक कॉल्ड, एंड द डिजीज इज कॉल्ड गॉइटर. अगेन, एक बार ये नेक में स्वेलिंग आ गई तो आप उसको ऑपरेट करके कम नहीं कर सकते. हार्मोनल डिजीजेज आर इनक्योरेबल, दे कैन ओनली बी कंट्रोल्ड. एंड दिस डिजीज़ ऑल्सो हैज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इट. ये वाले डिजीज़ पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलती है. रीज़न, हम लोग जो नमक खाते हैं, प्लेन्स में रहने वाले लोग, दैट सॉल्ट कंटेन्स अ गुड क्वांटिटी ऑफ आयोडीन नेचुरली. प्लस हमारा जो नॉर्मल फूड है, हमारी जो सॉइल है प्लेन्स में, दैट इज़ रिच इन आयोडीन. सो वी नॉर्मली गेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आयोडीन. सो प्लेन्स में ये डिज़ीज़ बहुत कम मिलती है. बट इफ़ यू गो टू हिली एरियाज़, वहाँ की जो सॉइल है दैट कंटेन्स लेस क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, तो वहाँ के लोगों में आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा मिलती है. दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ रेस्ट्रिक्टेड मोस्टली टू द हिली एरियाज़. और ऐसी डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं, सच डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एंडेमिक डिजीज़. सो गॉइटर इज़ ऑल्सो एन एंडेमिक डिजीज़, राइट. थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक कराने के लिए वी हैव टू गो थ्रू अ ब्लड टेस्ट. एंड व्हेन इट गोज़ टू अ ब्लड टेस्ट, देन अ पर्सन कम्स टू नो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है. नॉर्मली इन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन और एट मेनोपॉज, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली थायरॉक्सिन हार्मोन में फ्लक्चुएशन होनी शुरू हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, राइट. सो दैट कैन बी ओनली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज, एज आई टोल्ड यू, इज़ अ डुअल ग्लैंड. क्या होते हैं डुअल ग्लैंड्स? वो वाले ग्लैंड जो डबल रोल करते हैं. दे आर एंडोक्राइन ऑल्सो एंड एक्सोक्राइन ऑल्सो. पैंक्रियाज डुअल ग्लैंड क्यों हैं? क्योंकि वो हार्मोन भी बनाता है और हार्मोन के अलावा वो पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस भी बनाता है, जिसके अंदर लाइपेज होता है और जो आपके फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सो इट इज़ रिलीजिंग अ डाइजेस्टिव जूस, तो वो एक्सोक्राइन है. एंड वो हार्मोन्स बनाता है. कौन से दो हार्मोन्स? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन.
ये दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारे ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं. वॉट एवर वी ईट, हम जो कुछ भी खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दैट कार्बोहाइड्रेट्स चेंजेस इनटू ग्लूकोज. चाहे आप रोटी खाएं, चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप पोटैटोज खाएं, कोई भी स्टार्ची फूड आप खाते हैं, so that changes into glucose. क्लियर? और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में आ जाता है. ब्लड में से वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना चाहिए, so that the cells can use that glucose for manufacturing energy, ATP, and that energy helps the cells to do their work normally. तो अगर ब्लड में इंसुलिन और ग्लूकागॉन की क्वांटिटी बिल्कुल रिक्वायर्ड जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो ये दोनों हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? इंसुलिन हेल्प्स द सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज. ग्लूकोज सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ये रोल इंसुलिन का है. ग्लूकागॉन कंट्रोल करता है कि कितना ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना चाहिए और कितना ब्लड में ही रुकना चाहिए. सो ये दोनों की क्वांटिटी अगर करेक्ट होती है, देन ब्लड के अंदर शुगर का एक ऑप्टिमम लेवल हमेशा बना रहता है. ना वो लो होता है, ना वो हाई होता है, एंड द पर्सन इज़ अ नॉर्मल पर्सन. बट इन केस ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट और ड्यू टू ओवरवेटनेस, समटाइम्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज्ड इन द बॉडी इज़ लेस. बॉडी को जितना इंसुलिन बनाना चाहिए, पैंक्रियाज को जितनी इंसुलिन बनानी चाहिए, वो उतनी नहीं बना पाता किसी भी वजह से. इन दैट केस सेल्स को रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज नहीं मिल पाता है. हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट भी हो रहा है खाना, ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा ग्लूकोज ब्लड में भी आ गया, लेकिन सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. सो सेल्स आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर एनर्जी. और अगर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है तो दैट लीड्स टू मैल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स and general weakness. But out of all the hormonal diseases, that is dwarfism, gigantism, goiter, lack of insulin leads to diabetes. सभी hormonal diseases में से सबसे easy है कंट्रोल करने में डायबिटीज़, because this can be directly controlled by humans. How? By controlling the amount of glucose intake and by increasing the amount of glucose used by the cells. एक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितना ग्लूकोज खाएं, डायरेक्ट शुगर बिल्कुल भी नहीं खाएं, क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें सो दैट ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम बने, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स खूब सारे खाएं बिकॉज उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस इंक्रीजिंग द फिज़िकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब हम बहुत फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो सेल्स को एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है. एंड देन इवन इफ़ द इंसुलिन इज़ लेस इन द बॉडी, तो भी सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं. अगर हम सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ा दें, हम बहुत मेहनत का काम करें, हाई एनर्जी यूज़ करें बॉडी में, in that case the glucose level in the blood decreases even in the absence of insulin. Clear? So these are the hormonal diseases about which we should know once we are talking about hormones and glands. In the exams you may get questions for writing short notes on them. You may get questions related to blood test, जैसा इस साल के पेपर में questions आए हैं. So observe these things around you. Learn how to study the blood reports and get aware about all these hormonal diseases. That's all about the chapter.